CFA exam in August 2024, be it level 1, level 2, or level 3, I have a pro tip to share with you that will really help you now that the exam is so close. Hi guys and welcome back to my channel. My name is Tanishka and I hope you all are doing good. This video is especially for all my CFA viewers, CFA level 1, level 2, level 3 who are giving their exam in August 2024. बहुत नजदीक है exam and I'm going to be sharing with you a pro tip that I have been using currently. Like I just, got this hack and it has helped me and I just think that it will help you too. So let's get straight to it. But before that, if you're new to this channel, then please take 1 second to hit the subscribe button. If you've ever liked my work, even a teeny tiny bit, so please channel ko join kar lo na by subscribing to it. And if you're already a part of this channel, then thank you so much for joining me in my journey. I hope we stay together till the end of time. Chashma out, scholar look out, because green light reflect ho raha hai, so please bear with the previous part of it. Anyways, I'm not gonna waste your time because I know कि अभी एग्जाम बहुत नजदीक है and आप सबको मेरी तरह बहुत धक 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 हो रहा होगा दिल में. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है हाँ, ना मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। Sorry for the wrong use, but it's a meme and you guys know it. एनीवेज, मैं इतना बात करती हूँ जब मेरे को बहुत एंग्जाइटी होती है. दैट्स अ लाई, मैं वैसे भी बहुत बात करती हूँ. सो नाउ यू गाइस नो कि मेरा भी एग्जाम अगस्त में है, होपफुली रहे. And obviously, we are doing the CFA study challenge. Some of you already know it. If you do not know it, I'm gonna add the link in the related description. तो please जाके देख लेना कि क्या है. And उसकी वजह से ना, I have been following a pattern. It has personally really helped me. And through this challenge, especially this last 1 week that has passed, मैंने एक चीज सीख लिया. I mean, I always knew it, but I think now it has hit more because I'm making content and I'm, meeting so many of y'all on an everyday basis. People who are giving CFA level 3 also. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ना, डोंट टॉक टू समबडी who's giving the exam unless it's like a very major doubt, बिकॉज उससे एंग्जाइटी बढ़ती है. कल को वो बंदा थोड़ा भी ज्यादा करे, आपको एंग्जाइटी होती है. मुझे तो होता है. बट लाइक आई सेड आई हैव चोजन अ फील्ड कि मैं अब वो इग्नोर नहीं कर सकती, तो मेरे पास तो दिन रात वही होता है. नाउ लास्ट 1 मंथ है एंड आपको पता है इट इज नॉट माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आई एम नॉट रियली स्टडिंग एनीथिंग. आई एम ऑब्वियसली जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ अपने लास्ट अटेम्प्ट्स में पढ़ चुकी हूँ. हैविंग सेड दैट, आई हैव अ मेथड ऑफ स्टडिंग. व्हेन इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई फॉलो दैट, इसलिए वो मैं बाद में बोलूंगी. बट नाउ दैट आई एम रिवाइजिंग इट एंड इट्स नॉट माई फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं क्या कर रही थी, मैं वो एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रही थी जो मैं अपनी डिटेल रीडिंग में यूज करती हूँ. एंड समवेयर आई वाज डूइंग दैट बिकॉज आई वाज सीइंग अदर पीपल, और उससे मुझे एंग्जाइटी हुई थी कि नहीं यार, ये लोग तो ये पूरा पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए. एंड आई रियलाइज्ड लिटरली लास्ट वीक कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया बिकॉज इट डजंट मेक सेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात बताऊं, आई एम somebody who learns audio visually better than reading. Like my reading skills are not that good at all. I prefer कि कोई मुझे बोल के समझाए. एंड ऑब्वियसली आई हैव माई मेंटर मनीष शामुका सर, जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास हैं. तो मैं क्या कर रही थी, मैं पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रही थी और मुझे समझ भी आ रहा था because it's like a revision for me only. And then instead of going to my practice, I was wasting time by reading the book again. And like I said, my reading is so slow. एक तो मुझे समझ नहीं आती ज्यादा, मतलब it's not my skill I feel. तो मैं बहुत ही धीरे धीरे, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, जिसकी वजह से जो चैप्टर मैं लिटरली एक दिन में खत्म कर सकती थी, आई टू ड्रैग इट टू 2 to 3 days. नाउ I literally this week said that, you know what, I'm not gonna do that step because I don't need to compare myself with anybody else. Just because सामने वाला बंदा पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है, क्वेश्चन भी कर रहा है, doesn't mean वो मेथड सही है. I should know my method and I should follow my method. Very simply put it, just because it seems like it's a harder method or just because it seems like it's a more hustle method doesn't make it the right method. So I had a client actually मे के एग्जाम में था एंड आई रिमेंबर टेलिंग इट टू दिस पर्सन एंड आई एम सो शॉक्ड कि अब तक मैंने क्यों नहीं यूज किया बिकॉज दैट पर्सन, यू नो व्हाट, वो बस ही वाज ट्राइंग टू पुट इन एवरीथिंग बिकॉज बाकी सब कर रहे थे कि यार वो पढ़ भी रही भी करे तो मुझे भी करना चाहिए. एंड आई रियलाइज कि जब मैंने उसको बात समझाई तो मैंने ये बात खुद क्यों नहीं समझी. इट टुक मी सम टाइम, बट दिस इज माई प्रो टिप दैट प्लीज नो योर सेल्फ. जस्ट बिकॉज मेथड बहुत हार्ड लगा है कि नहीं यार, 3,000 क्वेश्चन करना है, 6 मॉक करना है, बाकी सब कर रहे हैं, सब इंस्टीट्यूट मटेरियल भी पढ़ रहे हैं, वीडियो भी देखा है, श्वेजा भी पढ़ रहे हैं, तो यही सही होगा. नो, जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड, इट सीम्स वेरी, वाओ कितना सारा है, डजंट मेक इट द राइट मेथड. अगर आपका वो स्किल सेट ही नहीं है तो एक्चुअली आपके लिए गलत है. जैसे मेरे को अब लग रहा है कि अगर मैं नहीं पढ़ती तो मेरा पता नहीं कितने रिविजन हो जाते, बिकॉज आई वुड हैव सेव दैट मच टाइम, राइट. सो द प्रो टिप इज, please don't compare your method to anybody else. If your method is literally just solving questions and you feel like you're doing that better, it's fine. If your method is कि भाई मेरे को सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं, that is also fine. अगर आपका मेथड है कि नहीं मुझे सब करना ही है,
नहीं तो मुझे समझ नहीं आता, दैट इज ऑल्सो फाइन. यू नो योर मेथड एंड ओनली फॉलो दैट मेथड. स्पेशली नाउ जब आप सिर्फ रिविजन मोड पे हो, देन दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डूइंग योर डिटेल रीडिंग, यू शुड take the time to even read the notes, even read the textbook once at least. But revision के time पे यार, I feel it is now, revision क्या होता है, you're just tapping your brain कि याद है ना, याद है ना, याद है ना. तो वो याद है ना करने का तरीका सबका अलग होता है. कुछ लोग बोलते हैं याद है ना, याद है ना, दैट्स देयर मेथड. कुछ लोग बोलते हैं याद है ना, and that also works. So just a quick reminder for all the people giving their exam in August, because the exam is very close and because I also wanted this reminder for myself. Just because it seems hard doesn't make it the right method. Just because you did not attempt 5,000 questions, or just because you feel कि बाजू वाला बंदा इतना कर रहा है मैंने नहीं किया, doesn't make your method wrong. And इस वजह से तो please don't defer your exam at all, because हमारी आदत है कि नहीं यार मेरे बाजू वाला बंदा 6 मॉक दे रहा है, मैं तो शायद सिर्फ 1 या 2 दे पाऊँ, तो आई थिंक आई एम नॉट रेडी, आई शुड डिफर माई एग्जाम. प्लीज डोंट. Like I said, just because वो 6 मॉक देगा doesn't make his method right. Why are you giving the mocks? Why are you studying? Why are you practicing? What are you getting out of it? That's what's important. अगर आपका सिर्फ एक मॉक में भी दिमाग बैठ रहा है, सही हो गया, आपका पर्पस सॉल्व हो गया, तो इट्स फाइन. दैट मेथड इज ऑल्सो राइट. वो आपके लिए सही है, वो उसके लिए सही है. सो किसी और के मेथड पे बेस करके अपने मेथड को गलत मत करो. किसी और के मेथड पे बेस करके अपना एग्जाम डिफर मत करो. डोंट लेट दैट एंग्जाइटी क्रीप इन. आई लेट इट क्रीप इन फॉर माई सेल्फ. मेरे 2 दिन तो इतने खराब गए, हाउ टू टेल यू. बिकॉज आई स्टार्टेड सीइंग पीपल कि नहीं हम ये करें वो करें. हम लाइक भाई मेरा तो ये स्टाइल ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, शुड आई डिफर. बट देन आई लिटरली हैड टू टॉक माई सेल्फ डाउन कि नहीं, जस्ट बिकॉज उनका मेथड उनके लिए सही है डजंट मीन मेरा मेथड मेरे लिए सही नहीं है. सो यस, आई एम गोना एंड इट. मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूंगी बिकॉज आई नो कि आपका टाइम बहुत कम है. All the best to all of you who are giving your exam, and I hope this video helps you. And in case you were going through that anxiety, this also just helped you pump in कि यार आपका मेथड भी सही है and it can help you pass. मैंने खुद अपने level 1 level 2 में ये देखा है and I know कि अब भी hopefully आप भी देखोगे. So yeah, I hope this helps you. Once again, all the best to each and every one of you. I'll see you guys very, very soon. If you like this video, don't forget to like, comment, share, subscribe. Keep sparkling and definitely keep learning.